Welcome students. The topic of today is data frame, data structure. In my previous video, I have told you that if we talk about Python pandas, so there are two basic data structure that is used, series and data frame. Discussion about series is done in previous videos. Now we are going to start with data frame, data series. A data frame is another panda structure which stores data in two-dimensional way. For example, if we talk about series, so it stores data in one-dimensional way. Data frame stores data in two-dimensional way, like a matrix. It is actually a two-dimensional, that is tabular or spreadsheet-like labeled array, which is actually an ordered collection of columns. So it is two-dimensional like tabular data structure. It is labeled array which actually ordered collection of column where columns may store different type of data. That means the different columns can store different type of data. That means you can think the different column as different columns are like different series that are combined together to form a data frame. Here one thing that you have to keep in mind, that means if suppose you are having two columns in a data frame, then both of the column can have different data, like different values depending on the type of data. Like suppose the first column can contain string type value and second one can contain numeric value. But if suppose there is a column which contains numeric value, so at that time you cannot place string value in that. That means for a column, for a single column, the value must be identical, and for different columns the value can be different. Example, numeric or string or floating point or boolean type, etc. Any type of value you can keep in your column. Since data frame data structure is like two-dimensional array, let us first understand what is two-dimensional array is like. So a two-dimensional array is an array in which each element is itself an array. You have studied the concept of two-dimensional ND array in previous class, that is class 11. So a two-dimensional array is an array in which each element is itself an array. For instance, an array ANM, where M and N is the order of this array, is an M by N table which with M rows and N columns containing M multiplied by N element, which you can see in the diagram. Suppose we are having M N order, so at that time there are M rows and N columns, and the indexing will goes from 0 to M minus 1 and 0 to N minus 1, that is 0 0 to M minus 1 N minus 1, and the total number of element is M multiplied by N. For example, if suppose there is a array of 5 by 4, so indexing will start from 0 0 and goes to 4 3, and the total number of element is 5 multiplied by 4, that is 20. The number of element in 2D array can be determined by multiplying the number of rows with number of columns. For example, the number of element in an array A79 is calculated as 7 multiplied by 9, that is 63. So this is how you can get how many number of elements are there in an two-dimensional array. Now we are going to talk about the characteristics of it. The major characteristics of data frame data structure can be listed as: first, it has two indexes. इसमें दो indexes होती हैं, एक column का और एक row का. Or we can say that two axes
a row index that is axis 0 and column index that is axis 1. So here the first thing is it have two indexes. Unlike series which have only one index, here we are having two index. First index along axis 0 and second index along axis 1, that is row axis index and column axis index. Now second, conceptually it is like a spreadsheet where each value is identifiable with the combination of row index and column index. The row index is known as index in general and the column index is called column names. तो जैसे स्प्रेडशीट एक्सेल आपने देखा होगा तो हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और वो फाइंड होता है कॉलम और रो के नंबर्स को एसोसिएट करने से। तो वैसे ही यहाँ पे भी रो और कॉलम का इंडेक्स अगर हम एक साथ एसोसिएट करें तो विल गेट द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। नाउ द कॉलम इंडेक्स इज आल्सो नोन एज कॉलम नेम्स। द इंडेक्स कैन बी नंबर्स और लेटर्स और स्ट्रिंग। जो इंडेक्स हम यहाँ यूज़ करते हैं वो लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है। For example, you can see there are two tables given, both are the data frames. So for the first one, the row index are numeric like 0, 1, 2, 3, 4 and the column index are static and mean, stdef and min and max. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलम इंडेक्स है वो स्टैटिक एंड मीन ये सब है और रो इंडेक्स 0, 1, 2, 3 है। ऐसे ही सेकेंड टेबल को अगर हम कंसिडर करें तो हियर यू कैन सी स्मॉल ए बी सी डी ई आर द रो इंडेक्स एंड कैपिटल ए बी सी डी ई एफ आर द कॉलम इंडेक्स और कॉलम नेम्स। तो फॉर दिस टेबल इंडेक्स row index or simply the index labels are 0, 1, 2, 3, 4, 5, that is for axis 0, and column names or column indexes are males, females, person, ruler and urban. Now moving forward, there is no condition of having all data of same type across columns. Its columns can have data of different types, which you can see in figure 1.7a. The columns can have different type of data, like static is having static column is having string type data and is having integer type of data, mean is having floating type data and so on. You can easily change its value, that is the values mutable. That means whenever you want to change the value of data frame, you can do it easily because it is mutable, value mutable. You can add or delete rows, columns in a data frame. In other word, its size mutable. तो दोनों तरीके की म्यूटेबिलिटी आपको यहाँ मिलती है। इट इज़ रो म्यूटेबल, दैट वैल्यू म्यूटेबल, एंड इट इज़ साइज म्यूटेबल, दैट मीन्स you can modify its value and at the same time if you want you can modify its size by adding or removing some elements from it. Now that you have an idea about data frame, you can understand the term associated with data frame as explained in figure 1.7b, which I have already explained to you, that males, females, persons, ruler, urban are the column name and along with axis 1 and 0, 1, 2, 3, 4, 5 are the indexes, can be numbers, letters, string, etc. and is along with axis 0. That means this is what a data frame. Now moving forward, next topic is creating and displaying a data frame. So in this topic you are going to see how we can create and display the data frame. A data frame object can be created by passing data in two-dimensional format. Like earlier before you do anything with Panda module, make sure to implement Pandas and NumPy module, that is, give the following two important statement on your code or Python console.
तो पहले आपको लिखना होगा import pandas as pd और फिर import numpy as np। तो ये दो स्टेटमेंट जैसे आप पांडा में पहले से इंक्लूड करते आए थे वैसे ही आप फिर दोबारा से करेंगे। नाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यू कैन यूज सिंटैक्स एज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पांडा डॉट डेटा फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे डेटा फ्रेम जो फंक्शन है इसका डी और एफ दोनों कैपिटल हैं, जैसे सीरीज़ में एस कैपिटल था वैसे यहाँ पे डेटा का डी और फ्रेम का एफ दोनों कैपिटल है और यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेस नहीं है। दैट मीन्स यू नीड टू राइट डेटा फ्रेम and D and F are capital. Then in bracket a 2D structure, then columns is equals to column sequence and index is equals to index sequence, where the 2D data structure passed to it contain the data value. If you have imported panda as PD, then you can create a data frame as pd dot data frame also. Now you can create a data frame object by passing data in many different ways, जैसा कि आप सीरीज के साथ भी कर चुके हैं। पहला, टू डायमेंशनल डिक्शनरी। यू कैन यूज़ टू डायमेंशनल डिक्शनरी जो आपको क्लास 11th में मैं पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे की एक होती है, की मतलब सपोज़ करो एक की है, फिर कॉलन लगा के वैल्यू को एज अ हम लिस्ट पास करेंगे, फिर दूसरी की आएगी, फिर उसकी वैल्यू एज अ लिस्ट पास होगी। तो टू डायमेंशनल डिक्शनरी दैट इज डिक्शनरी हैविंग लिस्ट और डिक्शनरीज और एनडी एरे और सीरीज ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। दूसरा टू डायमेंशनल एनडी एरे, थर्ड सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट एंड another data frame object. So these are the four things by which you can create your data frame. Now we are going to talk about the first method, that is creating a data frame object from a 2D dictionary. तो किस तरीके से 2D डिक्शनरी का यूज़ करके हम अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, यू आर गोइंग टू सी दैट। तो अ टू डायमेंशनल डिक्शनरी इज़ अ डिक्शनरी हैविंग आइटम्स एज की वैल्यू where value part is a data structure of any type. Another dictionary, an ND array, a series object, a list, etc. तो जो टू डायमेंशनल डिक्शनरी होती है वो एक ऐसी डिक्शनरी होती है जहाँ पे की वैल्यू का जो पेयर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पार्ट या तो एक डिक्शनरी होती है या एक ND array होता है या एक सीरीज ऑब्जेक्ट होता है या लिस्ट होता है। But here the value part of all the key should have similar structure and equal length. तो यहाँ पे जो वैल्यू पार्ट होगा वो उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए और उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करें कि अगर मान लो हमारे पास एक की है ए और कॉलन लगा के हमने वैल्यू डाला 1 2 3 4। फिर दूसरा अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि बी, तो बी में जो वैल्यू आएगी वो भी ये 4 इसकी साइज़ होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम रख सकते हैं x y z एंड k, लेकिन जो इसकी साइज़ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। तो ये इस तरीके से होगा जैसे ए और बी हमारी कीज़ हो गई और 1 2 3 4 एंड एक्स वाई जेड के दीज आर द वैल्यूज़। तो ये भी टोटल 4 हैं, तो ये भी टोटल 4 ही होने चाहिए। तो यही रूल होता है यहाँ पे। नाउ फॉलोइंग सेक्शन एक्सप्लेन दीज विद हेल्प ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स। तो पहला है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यू एज लिस्ट दैट इज ND array. So you can have a two-dimensional dictionary wherein the value part consists of either list or ND array. Passing such 2D dictionary to data frame will create a data frame object as you can see yourself in the given example. तो जैसे अगर आप ये एग्जाम्पल कंसिडर करें तो इस एग्जाम्पल को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो dict1 नाम का एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे पहली जो की है वो है स्टूडेंट और इसकी वैल्यू है
रुचिका, नेहा, मार्क और ये। तो यहाँ पे देखिए 5 वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं। फिर दूसरी की है हमारी मार्क्स। इस मार्क्स में आप देखेंगे तो फिर 1 2 3 4 एंड 5 हमारे वैल्यूज़ हैं, मतलब आप देख सकते हैं वैल्यूज़ हमारी सेम हो रही हैं। फिर स्पोर्ट्स नाम का हमने एक की बनाया, उसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 वैल्यूज़ हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 कीज़ हैं और हर की से एसोसिएटेड हमने लिस्ट यूज़ किया है एंड एवरी लिस्ट इज़ हैविंग 5 वैल्यूज़। नाउ अब हमने dict1 को अगर कंसिडर किया, dict1 को अगर हमने प्रिंट किया तो उस केस में आपको ये जो कीज़ है, ये जो मतलब कीज़ और वैल्यू का पेयर है वो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे dict1 को हमने प्रिंट किया है तो ये एज एन आउटपुट आपको मिल रहा है। अब अगर हम इससे डेटा फ्रेम बनाएं तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमने लिखा DTF1 इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम। अगेन देख लीजिए D और F कैपिटल है डेटा फ्रेम का, और इसके ब्रैकेट में पास किया dict1। तो यहाँ पे dict1 हम पास कर रहे हैं तो जो कॉलम इंडेक्स है वो तो मार्क, स्पोर्ट और स्टूडेंट हो जाएगा, लेकिन जो रो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा 0 1 2 3 4 5। तो अगर हम यहाँ पे इसके आउटपुट को देखें, DTF1 को जब हमने प्रिंट कराया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 1 2 3 4 दीज आर द इंडेक्स, मार्क्स, स्पोर्ट एंड स्टूडेंट दीज आर द कॉलम नेम्स और कॉलम इंडेक्स, एंड these are the set of value that we might have in our data frame। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। तो as you can see that the created data frame object has its index assigned automatically 0, just as it happens with series object, and columns are placed in sorted order। You can specify your own index too by specifying a sequence by the name index in the data frame, like you can write DTF2 is equals to PD dot data frame dict1 comma index is equals to 1 2 3 4 5 in Romans, and when you display it you will get the output like this। So I am going to demonstrate it with an example of एग्जीक्यूशन। इसके लिए मैं QPython का यूज़ करूँगा। एडिटर मोड में चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले देखो ऊपर की जो 2 लाइन है वो तो एज इट इज़ रहेंगी हमारी, कि इम्पोर्ट numpy एज NP और फिर इम्पोर्ट pandas एज PD। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो हमने लिख लिया D1 is equals to, अब here we need to create an dictionary, तो for that I am using curly braces। अब इस curly brace के अंदर आके यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है स्टूडेंट, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट, शॉर्ट में लिख दिया STU। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें देनी है, तो वैल्यू देने के लिए अगेन वी नीड टू यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में आके हमें कुछ नाम देने हैं, तो आई एम राइटिंग द नेम A, B। आई एम डूइंग दिस टू सेव माई टाइम। आप कुछ मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हैं। D, तो मैं केवल 4 वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, आपके बुक में 5 वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं। देन आफ्टर कॉमा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क्स दे रहा हूँ, तो मार्क्स एज अ की लेने के लिए कॉलन सिंगल कोट लगाया, अब यहाँ पे दे दिया मार्क्स, और फिर कोलन साइन यूज़ करके अगेन वी नीड टू हैव स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट आई एम गोइंग टू गिव सम वैल्यूज़ इन इट। तो आई एम गोइंग टू राइट 50.5 85.6
32.9, 45.8। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब केवल मैं 2 ही कॉलम लेके चल रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स नहीं बना रहा हूँ। तो इतना करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया डी को, मतलब D1 को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। पहले इतना हम आउटपुट ऑब्ज़र्व करें, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो D1 को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है, आप आउटपुट देख सकते हैं। STU, मार्क्स, ये 2 हमारी कीज़ आ रही हैं और उसके एसोसिएटेड वैल्यूज़ आ रही हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम के लिए मैंने लिखा DF1 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मुझे लिखना होगा PD, दैट मीन्स पांडा ऑब्जेक्ट डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का D एंड फ्रेम का F। ये हमेशा कैपिटल होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि डेटा फ्रेम का D और F कैपिटल है। देन ब्रैकेट के अंदर मैंने यूज़ कर लिया D1 को एंड फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। नाउ प्रिंट एंड देन आई एम गोइंग टू प्रिंट DF1। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे डिक्शनरी प्रिंट होगी और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल है, डेटा फ्रेम है, वो प्रिंट हो रहा है, जिसमें 2 कॉलम्स हैं, एक STU है और एक मार्क्स है। ये अगर आप आउटपुट को कंसिडर करें तो STU और मार्क्स, दीज आर द 2 कॉलम्स। एंड STU कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आप देख सकते हैं A, B, C, D ये वैल्यू है, और मार्क्स कॉलम में ये वैल्यूज़ हैं, और 0, 1, 2, 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है, दीज आर व्हाट, दीज आर द इंडेक्सेस। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। ऐसे ही अगर हम इसमें इंडेक्स भी देना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यूज़ किया DF2, और DF2 इज इक्वल्स टू मैंने सेम यूज़ किया PD डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का D और फ्रेम का F मस्ट बी कैपिटल, and here I am writing D1। अब D1 देने के बाद अगर हमें इंडेक्स भी देना है तो कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल्स टू, अब जो भी इंडेक्स हमें देना है उसको एज अ एरे या एज अ लिस्ट हम यहाँ पे पास करेंगे। तो अगर हमें लिस्ट यूज़ करना है तो फॉर दैट आई हैव प्लेस द स्क्वायर ब्रैकेट हियर। अब यहाँ पे हम वैल्यू जो इसकी इंडेक्स की देना चाहते हैं, तो मैंने इंडेक्स दे दिया 10, 20, 30, 40। चूँकि 4 वैल्यूज़ ही हमने अपने डिक्शनरी में रखी हुई है, तो हम यहाँ इंडेक्स भी केवल 4 ही देंगे, दैट इज़ वी नीड टू गिव ओनली 4 इंडेक्सेस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट D2, that means DF2. So I am writing DF2 here to print it. If I execute now, you can see, you can observe the output. पहले केस में स्टूडेंट STU मार्क्स को डिस्प्ले किया एज अ डिक्शनरी। देन आफ्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला जो डेटा फ्रेम है, यहाँ पे इंडेक्स जो आ रहा है वो 0, 1, 2, 3 आ रहा है, और फिर जो दूसरा इंडेक्स, दूसरा केस है जब DF2 को प्रिंट किया है तो इस समय इंडेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इन दिस वे यू कैन चेंज द इंडेक्स टू। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आप अपने बुक में देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया है कि given a dictionary that stores the section names list as value for section key and contribution amount list as value for contrary key। तो इसके लिए डिक्शनरी पहले से बनी हुई है। dict1 इज इक्वल्स टू सेक्शन ABCD
एंड कॉन्ट्रा इज इक्वल्स कॉन्ट्रा की वैल्यू है 6700, 5600, 5000 एंड 5200. नाउ राइट द कोड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रेम यूजिंग द अबव डिक्शनरी. अब आप इस डिक्शनरी का यूज़ करके आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है. इट्स टू ईजी. जस्ट यू नीड टू राइट इम्पोर्ट pandas as pd. dict1 is equals to section colon abcd. कॉन्ट्राई की वैल्यू दी है, मतलब यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट हो गया. नाउ यू नीड टू राइट df1 is equals to pd dot data frame dict1 and then print df1. तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर डेटा फ्रेम ईजली. तो आउटपुट में आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. ये आपकी कॉन्ट्री पहले आ रही है, फिर सेक्शन आ रहा है, और इसका जो रो इंडेक्स है दैट इज़ 0 1 2 3. जो कॉलम इंडेक्स या कॉलम नेम है वो कॉन्ट्राई और सेक्शन है, एंड 6700, 5600 एंड सो ऑन एंड ABCD, दीज आर द वैल्यूज़. तो स्टूडेंट प्लीज़ ट्राई टू एग्जीक्यूट this code, try to make your own panda data frame, and in case of any doubt please contact me. So that's all for this video. In next video we will start from creating data frame from 2D dictionary having values as dictionary object. Thank you.